morning everyone. Myself Gautam Sharma, Mechanical Department teacher, faculty of Pahur Polytechnic. Okay. Today I will teach thermal engineering subject, and I have a topic. I have choose the topic first law of thermodynamics for open system, derivation of SFEE. What is SFEE? It is steady flow energy equation. SFEE is steady flow energy equation. So first of all we will discuss first law of thermodynamics for open system. Okay, you know already about closed system. First law, what is that? Now slowly I will start this. Now first of all I will discuss about flow work. What is flow work? Flow work. First of all, you know what is flow work. Okay, flow work or energy, the amount of energy required for fluid, the amount of energy required for fluid to flow it or maintain this flow कहने का मतलब ये है कि कोई भी लिक्विड है, वो लिक्विड का मूवमेंट जो होता है एक पाइप से दूसरे पाइप तक, या कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में मान लो पानी जा रहा है. ओके, सो ये पानी जो जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं वर्क लग रहा है, वो वर्क जो लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क. ओके, सो दिस इज योर फ्लो वर्क. अंडरस्टैंड? सो आई कैन टेल यू अबाउट फ्लो वर्क मोर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द डायग्राम. ये है आपका so this is control volume. This system is an open system. Okay, now suppose there is a fluid. यहाँ पे आपका फ्लूइड है. ओके, और फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है. अंडरस्टैंड? ये फ्लूइड का जो है ये एरिया होगा A. सपोज ये डिस्टेंस को अगर मान लो कि डेल एक्स ये स्मॉल डिस्टेंस है और ये एरिया है उस फ्लूइड एलिमेंट का. दिस इज योर फ्लूइड एलिमेंट और इस फ्लूइड एलिमेंट का एरिया है A. नाउ ये पूरा फ्लूइड इसमें भरा हुआ है. ये फ्लूइड जो है अंदर से प्रेशर लगा रहा है P. तो इस फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए जो फ्लो वर्क होता है, फ्लो वर्क कैसे निकालेंगे? तो यू नो दैट दिस इज अ प्रेशर, दिस इज योर एरिया. सो ये प्रेशर को एक्वाइंट करेगा, ये प्रेशर को ये रिपल्स करेगा ताकि ये प्रेशर को तोड़ सके और आगे बढ़ सके फ्लूइड. इसके लिए इसमें फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. सो दिस इज योर फोर्स. अंडरस्टैंड? अब ये बताइए, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्मॉल x dx डेल x. नाउ टेल मी वर्क डन इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय द फ्लूइड इक्वल टू force into displacement. Here force is your pressure into area into del x. Okay, so this is your work done, and this work done is known as flow work. इसको हम लोगों ने क्या कहा? flow work. So you can easily understand कि flow work कैसे लाया गया. The amount of energy required for a fluid to maintain the flow of a fluid. मतलब फ्लूइड का जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए जो फोर्स ये वर्क डन किया जाता है उसको फ्लो वर्क बोला जाता है. ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो फ्लो वर्क कैन बी आल्सो रिटन एज P A into del x. नाउ सपोज फ्लो वर्क पर यूनिट मास का अगर बात करें, ओके, फ्लो वर्क पर यूनिट मास का अगर बात करते हैं तो क्या होता है? देखिए, फ्लो वर्क
ये तो फ्लो वर्क हो गया P इंटू ए इंटू डेल एक्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर यूनिट मास। अगर हमको यूनिट मास के बारे में बताना होगा तो क्या होगा, W बाय m दैट इज इक्वल टू P इंटू एरिया इंटू डेल एक्स। ओके, सो वर्क डन पर यूनिट मास can be written as this. Okay, so work done per unit mass is what? Specific work. This is your specific work. Okay, this is your specific work. Now mass, what we can write mass? See here, mass को क्या लिख सकते हैं हम? देखो इधर यहाँ देख सकते हो, mass per unit volume equal to density. So mass can be written as density into volume, and you know that volume equal to area into del x. Volume equal to area into del x into rho, volume into area into del x. So this mass can be written here as, see here, specific work can be written as P into A into del x divided by density into area into del x into density into area into del x. ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो गया, ये del x कैंसिल हो गया. So this is your pressure per unit density, and we know that specific volume equal to what? Specific volume equal to 1 by density होता है. So P into specific volume is work done, specific work done. So specific work done is written as P into V. ये V क्या है भाई? स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम. ये V क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम. सो वी हैव डिराइव्ड वर्क डन इक्वल टू P into A into del x, and also we can derive work done per unit mass, that is specific work, that is small w equal to pressure into specific volume. So this is your specific volume, that is volume per unit mass. Okay, क्लियर है? तो हम लोगों ने समझा कि ये फ्लो वर्क क्या है. ओके, नाउ एक और दूसरा इंपॉर्टेंट है. आप देखिए, फ्लो वर्क के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है. अब दूसरा टॉपिक है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे. देन ओनली आई विल हेल्प यू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर डेरिवेशन ऑफ SFEE. ये SFEE क्या है? SFEE है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. सो दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है तुम्हारा थर्मल इंजीनियरिंग में. ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है फ्लो सिस्टम के लिए या ओपन सिस्टम के लिए. सो पहले तो हम क्या बताएं कि फ्लो वर्क क्या होता है भाई. फ्लो वर्क क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, फॉर अ फ्लूइड. कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड अगर जितना ज्यादा प्रेशर या ये एनर्जी लगाता है, ये वर्क करता है फ्लूइड पर ताकि वो मूव कर सके, उसको हम लोग फ्लो वर्क बोलते हैं. ठीक है. फ्लो वर्क के बाद मैंने क्या बताया कि ये फ्लो वर्क कैसे होता है. फ्लो वर्क होता क्या है एक्चुअली? यही होता है फ्लो वर्क. W इक्वल टू P इंटू A इंटू डेल एक्स. और ये W स्मॉल w इक्वल टू P इंटू स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम है. याद रखना कि स्पेसिफिक जब जोड़ते हैं इसका मतलब ये होता है कि पर यूनिट मास के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो वॉल्यूम है V, कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास V by m. ओके, सो दिस इज योर स्पेसिफिक वॉल्यूम. या तो मान लो इंथैल्पी H है, तो इंथैल्पी अगर H है तो स्पेसिफिक इंथैल्पी H पर यूनिट मास हो जाएगा. उसी तरह वर्क डन इक्वल टू P इंटू A डेल x होता है, दैट इज P इंटू कैपिटल V, जो कि ये टोटल वॉल्यूम है और इंटू प्रेशर हो जाता है. बट यहाँ पे हम लोग का स्पेसिफिक अगर वर्क निकालना हो तो P इंटू स्मॉल b होता है. ओके, सो ये था आपका फ्लो वर्क. नाउ
दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास। फ्लोवर के बारे में हमने समझा, फ्लोवर क्या होता है हम लोग को समझ में आ गया, या आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो flow work that is equal to P into capital V or P into small v for specific flow work, FW। ओके, now कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, it tells that mass can neither be created nor be destroyed। ओके, तो इसका इस सिस्टम में या कंट्रोल वॉल्यूम में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, ये इनलेट सेक्शन है, इसको मान लिया 1 1, ये आउटलेट सेक्शन है, इसको माना 2 2। ओके, अब मान लो कि यहाँ का मास जो है, जो इंटर कर रहा है dm1 है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जो इंटर कर रहा है फॉर अ टाइम पीरियड स्मॉल टाइम t। ओके, आउटलेट में क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जो है आउट हो रहा है और फॉर स्मॉल टाइम बीइंग del t। नाउ टेल मी, अगर ये जितना ज्यादा मास जा रहा है उतना ज्यादा मास अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे या तो मास बढ़ जाएगा या एक्सपेंड करेगा या फट जाएगा। ओके, तो ये क्या बताता है कि हमारा मास जितना जा रहा है उतना निकलना चाहिए, अगर नहीं निकल रहा है तो क्या होता है, यहाँ कहीं ना कहीं मास कंजर्व होता है या बढ़ रहा है। ओके, अब मान लो यहाँ पे हीट है, हीट तुम्हारा 1 से 2 तक Q 1 2 ये एब्जॉर्ब करता है या सिस्टम के द्वारा। ये सारा क्या है, ओपन सिस्टम है। क्या है ये, ओपन सिस्टम है। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, and this surface is known as control surface। एक्चुअली हम लोग सिस्टम, ये ओपन सिस्टम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक एरिया या रीजन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि ये है क्या आखिर। ओके, नाउ ये मान लो कि अगर फ्लूइड इधर से उधर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा कि वर्क डन होता है, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। मान लो dw वर्क डन हो रहा है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। ओके, dw वर्क डन होता है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, या del w बोल सकते हो आप, del w फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल del t। और आपका ये del q होता है फॉर del q हीट जो है आपका एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द कंट्रोल वॉल्यूम और बाय द सिस्टम फॉर स्मॉल टाइम del t। ओके, ना कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा, ये मान लो dm1 एंटर किया और dm2 बाहर निकला, तो कहीं ना कहीं इसका मास जो है इंक्रीज करेगा, अगर पूरा मास नहीं निकला तो मान लो dm कंट्रोल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है स्मॉल टाइम पीरियड पे। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताएगा, लेट इनलेट में कितना था, dm1 by dt टॉप। ओके, मास फ्लो रेट एट इनलेट माइनस मास फ्लो रेट एट आउटलेट। अब इसमें इतना ज्यादा, मान लो कि ये 100 kg था और बाहर निकला 90 kg, तो इसमें बचा कितना, 10 kg, यस और नो। सो ये 10 kg क्या है, इंक्रीज होता है किसका, कंट्रोल वॉल्यूम का मास। सो d मास कंट्रोल वॉल्यूम बाय dt। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसको याद रखना है। फ्लो वर्क हो गया pv, कंजर्वेशन ऑफ मास ये बता रहा है। नाउ टेल मी, dm1 by dt को ऐसा भी हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m1 by dt मास फ्लो रेट ऑफ m1 minus m2 is the mass flow rate at outlet, and this is equal to mass flow rate or mass increment at control volume। So this equation can be written like this। okay, तो अब देखिए, ये था पहला था फ्लो वर्क हो गया, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया होगा आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ओके, ना कंजर्वेशन ऑफ मास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ये डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, एक और नोट कर ले रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास m
1 डॉट माइनस m2 डॉट इक्वल टू m कंट्रोल वॉल्यूम रेट। ये जो डॉट है, डॉट क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। डॉट मतलब पर यूनिट टाइम का बात कर रहा है। ओके, डॉट का मतलब पर यूनिट टाइम का बात कर रहा है। ओके, नाउ एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फ्लूइड। अब इसमें देखो, फ्लूइड अगर एंटर करता है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। वो एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है? सो एनर्जी एसोसिएटेड with this fluid flow। कौन कौन सा एनर्जी होता है? देखिए, एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फ्लो, पहला जो है आपका, ये पहला इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड होगा। ओके, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड, एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज U प्लस, और कौन सा एनर्जी हो सकता है भाई? जब ये मूव कर रहा है तो ये इनलेट सेक्शन में PV फ्लो वर्क होगा, तो फ्लो वर्क PV। और क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर। अगर वेलोसिटी m की जगह c लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे v ऑलरेडी वॉल्यूम के लिए हो रहा है, सो इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम और कंफ्यूजन, सो c हाफ mc स्क्वायर। ओके, c इज द वेलोसिटी। ओके, c इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और क्या हो सकता है? इसको थोड़ा रब कर दो मैं। और क्या हो सकता है? इंटरनल एनर्जी PV और हाफ mc स्क्वायर। देन क्या होगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी mgz। z क्या है? मान लो ये डेटम लाइन है। ये अगर डेटम लाइन का मतलब रेफरेंस लाइन है और फ्लूइड आप यहां तक का ऊंचाई रहता है, तो z अगर हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर mgz हो जाएगा। सो इंटरनल एनर्जी हो गया PV हो गया हाफ mc स्क्वायर mgz। सो दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, दिस इज योर वर्क एनर्जी, फ्लो वर्क एनर्जी। फ्लो वर्क भी तो एक प्रकार का एनर्जी है ना। सो वर्क, फ्लो वर्क, ये क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, दिस इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ओके, सो एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फ्लूइड इज, यू कैन राइट दिस। ओके, नाउ और एक बात मैं बताऊंगा, इसको मैं मिटा दूं। अभी मैं बताया था स्पेसिफिक क्या होता है, पर यूनिट मास का जब बात करते हैं ना, ये जो है ये तो टोटल मास का एनर्जी बता है, टोटल मास कितना है। अगर हम एक यूनिट 1 kg ऑफ मास के बारे में बात करें, जब भी यूनिट मास का बात करते हैं तो स्पेसिफिक एनर्जी अगर का बात करें, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? स्पेसिफिक एनर्जी कैन बी डिनोटेड एज E, that is equal to capital E by m. So this equation can be rewritten as E divided by m. This is equal to internal energy by m plus PV by m plus half mc square by m plus mgz by m. So E by m is your what? Small energy, small or specific energy. This is equal to small internal energy, that is specific internal energy. This is your PV, that is equal to specific work, plus this is what? Half c, m is m get cancelled, half c square plus m get cancelled, so gz. So this is the energy associated with this fluid. When this fluid flow, then you will get this type of energy. Okay, now see here, U, internal energy plus flow work. Internal energy plus flow work can be written as enthalpy or specific enthalpy, small h. So E equal to h plus half c square plus gz. Okay, so this is the energy associated with the flow of fluid. Okay, you got this? So specific energy is what? Small h enthalpy plus half c square plus gz. Okay,
So you got three important things. I have derived three important things for you. Okay. So first of all, flow work PV. Second, conservation of mass. Then third is energy associated with this. So energy, either direct energy E can be written as U plus PV plus half mc square plus mgz, or H plus PV can be written as enthalpy, because enthalpy is known as addition of entropy plus flow work. So enthalpy plus half mc square plus mgz. This is your energy. And specific energy can be written as E small e equal to H plus half c square plus gz. Okay, so these three important things will help you out to derive SFEE, that is equal to steady flow energy equation. Okay, so conservation of mass, flow work, and this energy equation. Understand? Now we will derive this. So by using these three equations, by using this, with the help of this, we will derive this. First of all, I will draw a diagram, and step by step you will see how we can derive SFEE, that is equal to steady flow energy equation, which is very important. Okay, now see, देखिए ये है आपका कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, ये इनलेट है. इनलेट में अगर फ्लूइड जा रहा है और यहाँ पे आउटलेट फ्लूइड जा रहा है. इनलेट का फ्लूइड का प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है, जो V1 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंटर कर रहा है. C1 इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड, and U1 is the energy, internal energy of that fluid. Okay, now P2 is the pressure at outlet section of this control volume system, and V2 is the volume which is at outlet, and C2 is the speed of the fluid, and U2 is the internal energy. Okay, U2 is the internal energy of the fluid. Now ये जो Z1 है, ये हाइट है ऑफ द एट इनलेट, मतलब इनलेट में जो फ्लूइड जा रहा है, इन अंदर जा रहा है, उसका हाइट Z1 है, और आउटलेट है Z2, दैट इज बाहर जा रहा है. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फ्लो वर्क के बारे में बताया था, PV स्पेसिफिक फ्लो वर्क P इनटू स्मॉल v. कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने बताया था कि dm1 by d tau माइनस dm2 by d tau इक्वल टू dmCV by d tau. ये तीन इंपॉर्टेंट चीज था. फिर एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो, दैट इज E इक्वल टू H प्लस हाफ mc स्क्वायर प्लस mgz. नाउ स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो इज स्मॉल e इक्वल टू H प्लस हाफ c स्क्वायर प्लस gz. ओके, नाउ ये अंदर जो जा रहा है फ्लूइड और ये बाहर निकल रहा है फ्लूइड. ओके, तो ये अगर मास जाने के समय का मास है पर यूनिट टाइम dm1 by dt. क्या है? dm1 by dt. हर एक सेकेंड में, मान लो ये 2 सेकेंड में, ये एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ मास m1 जो है इंटर कर रहा है. ओके, और बाहर जो निकल रहा है dm2 by dt तो ये बाहर निकल रहा है मास. ओके, अब ये मान लो कि अंदर जो जा रहा था dm1, बाहर निकल रहा है dm2, तो बाकी जो बच रहा है मास वो हो रहा होगा dmCV by d tau. ओके, dmCV by d tau. यस और नो? अब ये बताइए कि dmCV by d tau है, ये बता दिए dmCV by d tau, ये तुम्हारा मास इंक्रीज हो रहा है. अगर मान लो कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, दैट इज del Q by del tau लिख सकते हैं एक छोटे से स्मॉल टाइम के लिए, बीम के लिए. और वर्क डन डेल पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के लिए del W by del tau लिख सकते हैं. यस और नो? सो दीस आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ वी विल ड्राइव बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? तो ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब जो एनर्जी अंदर जा रहा है और जो उतना ही एनर्जी या तो बाहर निकलेगा, अगर बाहर उतना नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है हमारे सिस्टम का कंट्रोल वॉल्यूम का इंक्रीज होगा. ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, इसको मैं मिटा दूं, इसका काम नहीं है अभी फिलहाल। according to conservation of एनर्जी इनलेट एनर्जी क्या होगा? इनलेट में मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm1/t टॉ जा रहा है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जो है कितना क्या क्या एनर्जी लेके जाएगा? तो इंथैल्पिक एनर्जी मान लो H1, स्मॉल इनलेट सेक्शन में अगर तुम्हारा इंथैल्पी होगा तो H1 होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H1। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ H1 इसलिए लिखे क्योंकि मास हम बाहर निकाल लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी हाफ C1²। ओके, तो ये था। तीसरा एनर्जी कौन सा है भाई? GZ1 पोटेंशियल हीट। सो दिस इज द एनर्जी एट इनलेट, प्लस हीट भी इंटर कर रहा है, सो दैट इज डेल क्यू बाय dt। ओके, ये तुम्हारा एनर्जी एट इनलेट है, एनर्जी एट इनलेट। ना एनर्जी एट, इसको क्या करेंगे? बाहर कितना निकल रहा है? देखो सिंपल बेसिक समझो, ये 1000 जूल है एनर्जी, बाहर इंटर कर रहा है, अंदर इंटर कर रहा है 1000 जूल, बाहर निकल रहा है 800 जूल, तो बचा कितना? 200 जूल। यस और नो? सिमिलरली यहां भी गए, इनलेट का यहां पे क्या किया हमने 1000 मतलब इनलेट माइनस 800 मतलब आउटलेट, दैट इज इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम का एनर्जी जो इंक्रीज हुआ वो। तो सिमिलरली हम यहाँ भी इक्वेशन ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इनलेट में ऐसा किए, मान लो आउटलेट है तो आउटलेट का मास एसोसिएशन कितना है, मतलब मास पर यूनिट मास हर एक टाइम पे कितना, हर एक टाइम पीरियड पे हर एक सेकंड में कितना मास निकल रहा है। सो डेल m2/डेल और ये मास क्या क्या एनर्जी लेके निकल रहा है? तो इंथैल्पी H2 प्लस हाफ C2² दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस GZ1 सॉरी Z2। m हटा दे रहे क्योंकि m यहाँ पे बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, प्लस देखो प्लस और एक चीज है यहाँ पे छूट रहा है, ये H1 था इंटरनेट, देखो प्लस सॉरी प्लस क्यों, हाँ प्लस नहीं है ये, और इसमें क्या क्या और बाहर निकल रहा है भाई? प्लस डेल W बाय डेल टॉ, ये प्लस हो गया। दिस इक्वल टू हमारा जो है इसका एनर्जी मान लो D इस कंट्रोल वॉल्यूम का, ये हर यूनिट टाइम में इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर ये 1000 जूल ये वाला इनलेट एनर्जी है, ये तुम्हारा आउटलेट है, तो ये हमारा बचा हुआ जो चीज है क्या होगा? DECV बाय D टॉ। फिर से समझो, ये इनलेट में मैंने इतना एनर्जी दिया, आउटलेट में इतना एनर्जी दिया, तो बचा क्या? ये वाला एनर्जी। तो ये हमारा एक इक्वेशन फ्रेम आउट हो गया। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन हम लोगों को क्या डिराइव करना है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है भाई? स्टेडी स्टेट कंडीशन में प्रॉपर्टीज आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? बदलाव नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो पहला प्रॉपर्टी मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब DECV बाय D टॉ हर यूनिट में 0 होना चाहिए। दूसरा जो है मास भी चेंज नहीं होना चाहिए, DEmCV बाय D टॉ दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। यस और नो? तो ये पहला है, एनर्जी भी 0 होना चाहिए, मास में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो मास में अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो हम लोगों का एक इक्वेशन था, याद है? dm1 बाय D टॉ माइनस dm2 बाय D टॉ इक्वल टू dmCV बाय D टॉ। ये अगर 0 हो जा रहा है मतलब ये बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है कि dm1 बाय D टॉ इक्वल टू dm2 बाय D टॉ, क्योंकि ये 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू dm बाय D टॉ लिख सकते हैं भाई। dm बाय D टॉ मतलब क्या? m डॉट भी लिख सकते हैं। देखो m डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम,
तो कहीं ना कहीं दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक जीरो हो गया, दूसरा है कि m1 इक्वल टू m2 एंड दिस इज इक्वल टू m को लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2, m1 लिखो या m2 लिखो या m लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। तो फॉर स्टेट कंडीशन हमारा क्या था, डी m1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट इक्वल टू m डॉट। ओके ना, ये इक्वेशन में पुट कीजिए आप, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ये इक्वेशन में पुट करो, तो पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यह देखो dm1 by d top को हम लोग m डॉट भी लिख सकते हैं, याद रखना dm1 by d top that is equal to m dot, मतलब मास फ्लो रेट है। सो दिस कैन बी रिटन एट m dot h1 plus half 2 c1 square plus gz1 plus del q by d top minus m dot h2 plus half c2 square plus gz2 plus सॉरी दिस विल बी also माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर जा रहा है, तो del w by d top इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि ये 0 हो गया। ओके, और मास m डाल दिए। अब सबको मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, h1 मास से डिवाइड इक्वेशन बाय m डॉट। सो मास फ्लो रेट से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, h1 प्लस हाफ c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस देखो डेल q बाय डेल d, तो कैपिटल Q याद रखना, हम बताए हैं कैपिटल Q बाय स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल q हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल q हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। कैपिटल H बाय m इक्वल टू स्मॉल h, अभी मैं बता रहा था स्पेसिफिक के बारे में। तो जब कैपिटल Q बाय m करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल q बाय dt, स्मॉल q बाय dt। अब ये स्मॉल q बाय dt को q डॉट लिख सकते हैं हम, q डॉट लिख दिए। ओके, q डॉट लिख दिए, और क्या है भाई, माइनस h2 प्लस माइनस h2 प्लस हाफ c2 स्क्वायर प्लस gz2 माइनस, सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं पर यूनिट मास से सबको डिवाइड कर रहे हैं तो स्मॉल w डॉट लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अंडरस्टैंड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, तो फिर से देख लो, h1 प्लस हाफ c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस q डॉट माइनस h2 प्लस हाफ c2 स्क्वायर प्लस gz2 माइनस w डॉट cv। या इसको और एक बार ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इसको मिटा देता हूं, इस ये इक्वेशन को ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, so this equation can be rewritten as h1 plus half c1 square plus gz1 प्लस q डॉट जो है हीट इंटर पर यूनिट टाइम जो हो रहा है उसको हम लोग q 1 से 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पहला 1 से प्रोसेस से 2 तक गया है। दिस इक्वल टू h2 प्लस हाफ c2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस w1 से 2। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। पहला तो जो था इक्वेशन वो था एनर्जी इक्वेशन, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस फ्लो को स्टेडी माना है, इसलिए इसको बोल दे रहे हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अंडरस्टैंड, SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये है हमारा डेरिवेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। सो आई थिंक लिख लिए होगे तुम लोग, इसको बढ़िया से समझ लेना कि ये क्या है। ओके, SFEE इक्वल टू, फिर से याद रखने में बहुत आसानी होगा, एंथैल्पी होना चाहिए। देखो एक साइड याद रख लोगे तो हो जाएगा, एंथैल्पी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, प्लस एक साइड हीट हो जाना चाहिए। हो गया। सिमिलरली एंथैल्पी H2 प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी C2 प्लस Gz2
प्लस वर्क W1/2, दैट्स इट। और ये इक्वेशन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। उसके बाद आगे की क्लास में मैं डिराइव करूंगा, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि मैं बॉयलर में कैसे इस्तेमाल करता हूँ। जैसे बॉयलर ओपन प्रोसेस होता है, कंडेंसर तुम्हारा ओपन प्रोसेस होता है, ओपन प्रोसेस है, और इवापोरेटर है तुम्हारा, कंप्रेसर टरबाइन है, नोजल है, डिफ्यूजर है। इसमें अप्लाई कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे पावर प्लांट का बेसिक इंप्लीमेंटेशन इसी इक्वेशन पे है। तो इस इक्वेशन के डिराइव करना बहुत बार एग्जाम में आता भी है, और डिराइव करने के बाद आपको समझ में आता है, चीजों को समझ में आ रहा है कि कहाँ से एनर्जी आ रहा है, कहाँ से एनर्जी जा रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। you